Good morning and welcome to the sixth session of our lecture series under the banner Understanding Economy, which is being organized by the Department of Economics, St. John's College, Agra, in association with Dr. B.R. Ambedkar University Economic Welfare Association. In today's session, we have certain changes. We have not provided the Zoom link to the students, but we have students in different colleges who have been provided multimedia rooms where they can sit and watch the session live. And at the same time, for public viewing, we will be uploading the lectures on the YouTube channel of the Department of Economics in John's College, Agra. The topic for today is meaning, types, causes, and impact of inflation. This topic is highly beneficial, especially for the students studying macroeconomics. So, without taking much time, I would like to invite our first resource person for the day, Dr. Bharat Bhushan, who is serving as an assistant professor in the Department of Economics, Shyamlal College, University of Delhi. Dr. Bharat has a long teaching career starting from the year 1999, and he has written several papers and chapters in the books. He has also been a very active personality as far as the corporate life of the college is concerned. We are very happy to have you with us, sir. And we would like to thank you that you have given your valuable time for this lecture series. Over to you, sir. Thank you very much, Dr. Neeraj. Good morning to you all. The very frequent question, am I audible and visible clearly? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you very much. Dr. Prashant has been a very old friend. I was fortunate to meet him in a academic staff college, Shimla. And since then, his friendship is valued a lot. I have learned from him a lot. And when he invited me for this lecture, there's no reason I could say no. The topic is also very interesting. So let me share my screen. So another frequent question during these days, uh, is my screen visible? Not yet, sir. So, okay. Host has disabled, so I need Sir, to you are the co-host. You are the co-host. You have all the rights, sir. but I'm clicking on share screen. Uh, I'm unable to share the screen. okay, sir. Now you have the right, sir. Please check. Okay. Yeah. I hope my screen is visible now. Yes, sir. It is visible. Okay. So the topic is very current, very relevant, and actually not very relevant only these days. It is relevant all the time. Uh, Let me first of all make it clear that this presentation is student centric because the topic is such that गुरुजन तो सारे जानते ही होंगे इसके बारे में काफी ज्यादा, तो बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल होगा ये। और दूसरी बात यह है कि मोड ऑफ लेक्चर विल बी बाइलिंगुअल ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहे। I will start with concept of inflation. Sometimes we confuse high prices with inflation, but it is not necessarily high prices. For example, let's say petrol is 91 rupees a liter these days, and suppose somehow it falls to 88 rupees and still continues to be 88 rupees a liter. तो जो 88 रुपए का प्राइस है वो कम नहीं है, और उसके चलते आप 6 महीने बाद ये कहें कि प्राइस बहुत हाई है इसलिए दिस इज अ केस ऑफ इन्फ्लेशन, बट दिस विल बी रॉन्ग टू से दिस बिकॉज चाहे कितना भी हाई प्राइस हो, हाई प्राइस इज नॉट इन्फ्लेशन. फॉर इन्फ्लेशन टू एग्जिस्ट there should be a process of rise in prices. Second thing is the rise in prices has to be seen at a macro level. It is a macro concept. So the rise in prices has to take place over a large basket of goods. And in accordance with these two things,
that is one is rising prices and the second is it has to be over a big basket of goods, we can call it we can define inflation as a sustained increase in general price level. The word general is important because there can be a case of increase in prices over some goods and there can be a simultaneous case of fall in prices of some goods. तो अगर थोड़ी गुड्स में प्राइस बढ़ रहे हैं, थोड़ी गुड्स में प्राइस कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, दैट विल रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन. For example, let's take an example. Suppose आलू का प्राइस 2020 में 10 रुपीज पर केजी था, 2021 में ये बढ़ के 12 रुपीज पर केजी हो गया. तो कैन वी कॉल इट इन्फ्लेशन की आलू की कीमतें 20% बढ़ गई है, तो इट इज अ केस ऑफ 20% rate of inflation? The answer is no, because we are not living just on the basis of onions. We consume a lot more things. Economies spread over a larger gamut of things. तो सिर्फ एक चीज की कीमत बढ़ने से we cannot call it inflation. So we have to take a larger basket of goods. For example, here we have taken 4 goods because हालांकि हमें तो बहुत हजारों कमोडिटीज लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम सिर्फ 4 गुड्स ले रहे हैं, पोटैटो, पेट्रोल, मैच बॉक्स और क्लॉथ्स. और इनके हमने 2 अलग अलग साल के प्राइसेस ले लिए. 2019 का प्राइस 20 रुपीज पोटैटो का और 2020 में एक साल बाद बढ़ के 24 रुपये हो गया एंड सो ऑन सभी चीजों के लिए. तो अगर हम इन सब चीजों को ऐड करें, दिस विल कम आउट टू बी 100. और इन चीजों को ऐड कर लें, अब मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, आप मान लीजिए कि ये 125 हो गया इसका टोटल. तो कैन वी कॉल इट कि ये 25% इन्फ्लेशन है? कम से कम जो हमने पिछला एग्जांपल दिया था पोटैटो वाला, उससे बेटर मेजर होगा अगर हम ये कहें कि यहाँ पे 25% इन्फ्लेशन है. लेकिन इट विल नॉट बी वेरी वेरी एक्यूरेट, बिकॉज पोटैटो और मैच बॉक्स या पेट्रोल और मैच बॉक्स का इंपॉर्टेंस एक जैसा नहीं है. अगर पेट्रोल क्योंकि हम सबके पास से किसी ना किसी फॉर्म में पेट्रोल का यूज हो रहा है, कोई 2 व्हीलर में यूज कर रहा है, कोई 4 व्हीलर में यूज कर रहा है, और नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में तो यूज हो ही रहा है. तो अगर पेट्रोल का प्राइस 10% बढ़ता है, 90 रुपीज से बढ़ के वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट. लेकिन अगर मैच बॉक्स का प्राइस डबल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैच बॉक्स जो 1 रुपए की थी वो अब 2 रुपए की हो गई है. तो इट डज नॉट इन्फ्लुएंस, इट डज नॉट इम्पैक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट मच. क्लोथ्स में अगर प्राइस चेंज होगा तो वो हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करेगा. तो ये जो इम्पोर्टेंस है इन चीजों की इन आवर लाइफ, उस इम्पोर्टेंस के बेस पे वी हैव टू असाइन वेट्स. जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम ज्यादा वेट असाइन कर देंगे, और जो चीज मैच बॉक्स माचिस इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, तो हम उसको एक छोटा वेट असाइन करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस. यहाँ पे क्या है, मैंने एक चीज और ली है, ये आर का मतलब है रिलेटिव प्राइस. आप इसको रेशो की फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं. तो हमने क्या किया है कि ये 24/20 इस तरह से करके ये रेशो निकाल लिया है हर चीज के लिए. 45/30 करके 1.5 आ गया. तो ये रेशो शो करती है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्राइसेस ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं. फॉर एग्जांपल क्लोथ का प्राइस हमने कर दिया कि कम हुआ है, तो ये रेशो 1 से कम आ रही है. और उसके बाद प्राइस या इन्फ्लेशन का एक मापदंड निकालने के लिए हमने R को W से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो है समेशन RW अपॉन W. तो ये आप करके देखना कि समेशन RW अपॉन समेशन WW हमने लिया कि 100 टोटल बन जाए. तो समेशन RW करके यू विल गेट टू नो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. दिस वाज द फॉर्मूला गिवन बाय लेस्पेयर इंडेक्स. उसके बाद साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं, उसको एक और तरीका ये कहने का है कि राइज इन प्राइस आल्सो रिफ्लेक्ट्स fall in purchasing power of rupee, purchasing capacity of rupee. For example, let's suppose we have a 100 rupee note. अब 100 रुपए में अगर प्राइस किसी चीज का, कोई भी चीज आप अस्यूम कर लें, तो
तो अगर वो 20 रुपीज पर यूनिट है प्राइस, वी आर एबल टू परचेज 5 यूनिट्स ऑफ दैट कॉमोडिटी। अगर प्राइस बढ़ के 20 से 25 रुपए हो जाता है, तो उसी 100 रुपए के नोट में वी विल बी एबल टू परचेज ओनली 4 यूनिट्स। तो जो 100 रुपए का नोट जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी 5 यूनिट्स थी, वो अब कम हो के 4 यूनिट्स हो गई है। तो ये एक मोटा मोटा अंदाजा। अभी हम जो इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले पार्ट में। अब यूजुअली हम ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। हर एक्चुअली जैसे किसी इंसान की हेल्थ के लिए देर आर सम इंडिकेटर्स। डॉक्टर पे जाएगा तो वो चेक करेगा बीपी, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, इस तरह की चीज़ें। तो वो इंडिकेट करती है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो द पर्सन इज नॉट हेल्दी। तो इसी तरह से इकोनॉमी की हेल्थ के चेक करने के लिए there are certain indicators like what is the growth rate of the economy, what is the inflation rate, what is the fiscal deficit। तो वो सारे के सारे इंडिकेटर्स इकोनॉमी की हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। तो वो जो इंडिकेटर्स है इकोनॉमी की हेल्थ के, उन्हीं में से एक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो इट विल कॉज अनसर्टेनिटी and it will be detrimental to the economy. So everybody talks about reducing the rate of inflation, but I would like to say कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए जरूरी भी है। अब अंबानी को अगर सपोज इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें वो 200 करोड़ रुपए की चॉकलेट हर महीने बना रहे हैं, 2 साल हो गए। नाउ ही वांट्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, ही वांट्स टू अपस्केल द प्रोडक्शन लेवल। तो वो अपस्केल करने के लिए व्हेन ही विल डिमांड मोर रॉ मटेरियल, व्हेन ही विल एम्प्लॉय मोर लेबर, तो वो लेबर एम्प्लॉय ज्यादा करने से लेबर का वेज रेट बढ़ेगा, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदने से रॉ मटेरियल की वेजेस बढ़ेगी। और दैट मीन्स कि ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी बढ़नी शुरू होगी। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन प्राइस वही है, तो इसका मतलब होगा कि स्क्वीज इन प्रॉफिट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। तो प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो थोड़ा थोड़ा प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि प्रोड्यूसर्स इंसेंटिवाइज्ड रहे कि हाँ वी आर नॉट एट ए लॉस टू इंक्रीज प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन बढ़ाना तो जरूरी है ही है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, और ग्रोथ रेट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी, पॉवर्टी भी फैलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन? अब जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि डिमांड और सप्लाई ये दो मार्केट फोर्सेज हैं जो मिलके प्राइस को डिटरमिन करती हैं। दिस इज ए बेसिक कंसेप्ट एंड नॉट अ न्यू थिंग। तो दैट मीन्स कि प्राइस में अगर कुछ चेंज आ रहा है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो रहा है, बढ़ रहा है प्राइस, या फिर प्राइस कम हो रहा है, तो दैट हैज टू डू समथिंग विद द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अकॉर्डिंगली वी हैव two main causes of inflation. One is increase in demand, the second is fall in supply. तो डिमांड साइड फैक्टर्स अगर हम लें तो सबसे पहला फैक्टर जो माइंड में आता है वो है चीप मनी पॉलिसी, जिसको हम इजी मनी पॉलिसी बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैंक CRR को कम कर देता है, कैश रिजर्व रेशियो को, या बैंक रेट को कम कर देता है, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए मनी सप्लाई को बढ़ाता है। ये CRR क्या है, बैंक रेट क्या है, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो या फिर किसी और कारण से, जैसे कि मोदी सरकार जब आई थी तो लोगों को एक भ्रम हो गया था कि मोदी सरकार चुन के आएगी तो सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब ना टेल मी, अगर सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ गए, विल इट रिड्यूस पॉवर्टी? इट विल नॉट, बिकॉज सप्लाई इज कांस्टेंट। जो हमारे देश में अनियन की पैदावार है, या आलू की पैदावार है, या गेहूं की पैदावार है, या और चीजों की, वो अगर कांस्टेंट है और हमने सबके अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिए, तो इट विल ओनली कॉज डिमांड टू इंक्रीज। और डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं, तो पीपल विल स्टार्ट ऑफरिंग हायर प्राइसेस। तो अल्टीमेटली वो प्राइस बढ़ जाएगा लेकिन आउटपुट उतनी ही रहेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही रहेगा। इट विल जस्ट बी ए केस ऑफ मोर मनी चेंजिंग फ्यू थिंग्स। ये मिल्टन फ्रीडमैन की बहुत फेमस कोटेशन है कि इन्फ्लेशन इज ए फिनोमिनन ऑफ टू मच मनी चेंजिंग टू फ्यू थिंग्स। बहुत सारा पैसा है लेकिन वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है वो बहुत कम है, और इसलिए
इन्फ्लेशन हो रहा है कि चीजें हैं नहीं लेकिन लोग खरीदने को ज्यादा तैयार हैं, तो ऐसे में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से प्राइसेस भी बढ़ेंगे। दूसरा एक फैक्टर है कि किसी कारण से अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गई है, लोग ज्यादा खर्चा करने को तैयार हैं, उनकी 100 रुपए की इनकम है लेकिन वो 100 रुपए ही कम से कम खर्च करने को तैयार हो रहे हैं, तो भी डिमांड बढ़ेगी। इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं कि अभी सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक स्कीम चलाई है जिसमें जो उनका एलटीसी का अमाउंट था वो उसको रीइंबर्स करा सकते हैं। अगर उनको कराना है तो उसको काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा पैसा अकाउंट में आएगा, लेकिन काफी सारा पैसा खर्च करने से जो थोड़ा सा पैसा अकाउंट में आ रहा है, उस अकाउंट में आने वाले पैसे के लिए लोग ज्यादा खर्चा करने को तैयार हैं। तो उससे या फिर किसी लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में टैक्स कम होगा, या इस तरह से अगर लोग ज्यादा खर्चा करने को तैयार है, दैट विल लीड टू हायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए डिमांड साइड का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में चार चीजों से मिलकर ही बनी है: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन चार फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर में अगर इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होगा। तो यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। फिर एक चीज है फिजिकल पैकेजेस, फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल स्टिमुलस। ये तो बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही नया कंसेप्ट है, बहुत ही करंट कंसेप्ट है, क्योंकि अभी कोरोना के चलते सरकार ने फिजिकल पैकेज दिया ही है। उससे पहले भी इट्स वेरी फ्रीक्वेंट थिंग। सबसे पहले केंज ने इसको हाईलाइट किया था जब उन्होंने कहा था कि अगर इकोनॉमी में मंदी है तो वी हैव टू इंक्रीज डिमांड समहाउ, और वो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर तो मंदी के टाइम आएगा नहीं, तो गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड। और उन्हीं के सजेशंस पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने न्यू डील प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था और इकोनॉमी को मंदी से बाहर निकाला था। तो उसके बाद 98 में जो ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ था उस समय गवर्नमेंट ने फिजिकल पैकेज दिया। 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था यूएसए में, और उसके चलते पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आया था, तो उस समय लगभग हर सरकार ने, हर देश की सरकार ने फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए थे। और अभी भी कोविड के बाद सरकार ने जो रिलीफ दिया है, फिजिकल स्टिमुलस दिया है, आपको पता ही है कि 20 लाख करोड़ रुपए का फिजिकल स्टिमुलस दिया है। 1 लाख करोड़ का मतलब 1 ट्रिलियन भी बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 20 ट्रिलियन रुपीज या 20 लाख करोड़ रुपीज का स्टिमुलस। 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस मिला, इसका मतलब क्या है कि सरकार ने इकोनॉमी में 20 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू की डिमांड जनरेट कर दी, तो उससे ऑब्वियसली प्राइसेस को बूस्ट मिलेगा। फिर एक चीज है रुपी डेप्रिसिएशन। अगर किसी कारण से रुपी की बाकी करेंसीज की फॉर्म में एक्सटर्नल वैल्यू थोड़ी कम हो रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है कि एक्सपोर्ट्स हमारे सस्ते होने लगते हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे होने लगते हैं। ये डियरर इंपोर्ट्स है, गलत लिखा गया, डियरर इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स थोड़े महंगे होने लगते हैं, तो अगर हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या कुछ और चीजें खरीद रहे हैं तो वो सब हमें महंगी मिलेंगी। पेट्रोलियम हमें थोड़ा सा महंगा लगने लगेगा, हालांकि प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस वही है, लेकिन क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो उसकी हमारे लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो भी प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ डिमांड। अगर इकोनॉमी ग्रोइंग है तो एवरीबॉडी ऑप्टिमिस्टिक, और ऑप्टिमिस्टिक होगा तो फिर लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, लोग भविष्य के प्रति ज्यादा आशावादी होंगे, ज्यादा सिक्योर फील करेंगे, दे विल स्पेंड मोर। इन सारे कारणों से डिमांड पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहाँ पे ये डिमांड साइड फैक्टर्स हैं ही है, तो मैं दो चीजें और यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। एक तो ये कि अगर ये साथ में हम कहें कि कैसे डिमांड पुश इन्फ्लेशन को, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कैसे रिजोल्व करना है, तो इन सारे फैक्टर्स को आप उल्टा करना शुरू कर दो कि चीप मनी पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटानी चाहिए, चाहे उसके लिए ज्यादा टैक्सेस करने पड़े, तो रुपये की वैल्यू को स्टेबल रखना चाहिए, फिजिकल कंसोलिडेशन करना चाहिए। एक्सपोर्ट्स को हम कम करने के लिए नहीं कहेंगे, खास तौर पे अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट्स है। हाँ, अगर ऐसी चीज का एक्सपोर्ट है जिसकी देश में शॉर्टेज है तो उस चीज का एक्सपोर्ट करने को मना करना चाहिए। और ग्रोइंग इकोनॉमी तो खैर अच्छी है ये इकोनॉमी के लिए, या इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर बढ़ रही है तो, लेकिन मोटे तौर पे हम इन फैक्टर्स को रिजोल्व करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम ये भी यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करेंगे कि एक चीज होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है नेगेटिव इन्फ्लेशन, वो भी इकोनॉमी के लिए काफी घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली नेगेटिव इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन तो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इट कैन पुट इकोनॉमी इनटू अ डिफ्लेशनरी स्पाइरल। कि अभी मान लीजिए प्राइसेस बहुत कम है, तो आप एक कॉमन सी फीलिंग ये आएगी कि प्राइसेस कम है तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे पोपटलाल जैसे लोग ऐसे हो सकते हैं कि अभी प्राइसेस कम हुए हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू फॉल इवन फर्दर, और इसलिए वो अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर रहे हैं। और अगर सारे लोग ऐसे करने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि डिमांड इकोनॉमी में कम होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसका एक एक फैक्टर और हम दे सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गया है तो एक चीज होती है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट इज एन आउटकम ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 5% आपको मिल रहा है, अपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, एक साल बाद आपको 105 रुपए मिले, लेकिन 5% ही इन्फ्लेशन भी है, तो जो वैल्यू 100 रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी आज थी वो एक साल बाद 105 रुपए की होगी। तो इस इन दैट सेंस आपका जो रियल बेनिफिट हुआ, रियल इंटरेस्ट रेट आपको मिला, वो जीरो मिला। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, दैट इज रियल इंटरेस्ट रेट। तो अगर ये जो इन्फ्लेशन रेट है नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हम अभी डिफ्लेशन की बात करने लगे हैं, तो अगर 5% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है नॉमिनल, और इन्फ्लेशन -5% है, तो आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 10% हो गया। तो ऐसे में लोग ज्यादा सेव करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, उनको लगता है कि सेविंग करना इज वेरी गुड, तो लोग सेविंग ज्यादा करने लगते हैं, डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड कम क्यों होगी, वो भी ये इस सारे फैक्टर्स के उल्टे करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर चीप मनी पॉलिसी नहीं होगी तो डिमांड कम हो सकती है, अगर प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाए तो डिमांड डिफ्लेशन हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो डिफ्लेशन हार्मफुल क्यों है, क्योंकि अगर डिफ्लेशन होगा तो उसके कारण डिमांड और कम होगी और लोग और ज्यादा प्राइसेस को गिरने की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और उससे ये एक स्पाइरल बन जाएगा। कुछ कंपनीज, जब प्राइसेस कम होते जाएंगे तो कुछ कंपनीज उसको झेल नहीं पाएंगी, बंद हो जाएंगी, और जब कंपनीज बंद होंगी तो वर्कर्स की डिमांड कम होगी, वर्कर्स की डिमांड कम होगी तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेंगे, लोग दारू पी के बच्चों को पिटाई करेंगे। तो अगर बच्चों को पिटाई से बचाना है और डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है, तो वी हैव टू keep the economy away from inflation, away from deflation also. Deflation is very dangerous. तो इसके अलावा ये अर्णव गोस्वामी की फोटो इसलिए लगाई है, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताऊं। अभी एक स्टूडेंट मेरी क्लास में पूछ रहा था कि सर अभी कोविड के चलते डिमांड तो कम ही है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन है, तो डिमांड ज्यादा है लेकिन फिर भी ये क्या हो गया, जस्ट मोमेंट। आई एम सॉरी, जस्ट पता नहीं क्या हुआ, एक सेकेंड। हाँ, तो कोविड के चलते डिमांड तो कम ही है, लेकिन प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि हालांकि डिमांड कम है, लेकिन जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण सप्लाई काफी कम हो गई थी चीजों की, और अगर सप्लाई कम होगी तो हमें पता है कि प्राइसेस बढ़ते हैं। तो प्राइसेस सप्लाई कम होने के कारण बढ़ सकते हैं, और सप्लाई कम क्यों हो सकती है या कॉस्ट क्यों ज्यादा हो सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक तो है इनपुट्स। अगर इनपुट्स महंगी हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ने से या पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से, या फिर जो भी रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनके इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस से बढ़ने से, ऐसी चीज़ों के कारण अगर इनपुट्स महंगे होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एंड इन दैट केस अगर हमें प्रॉफिट अपने बनाए रखने हैं तो प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। फिर एक चीज़ है होर्डिंग एंड स्पेक्यूलेशन। तो होर्डिंग एंड स्पेक्यूलेशन में आप बताएंगे कि अगर लोग होर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन है ये जरूरी नहीं कि नॉर्मल ही हो, इट कैन बी रियल increase in demand, it can be real shortage of demand, but it can also be artificial.
तो कई बार जो मान लीजिए एक शहर में कुछ ही 3-4 लोगों के हाथ में सारी की सारी सप्लाई है, वो लोग होर्डिंग करने लगते हैं। तो मार्केट में एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट होगी और उस समय लोग खरीदना है तो ज़्यादा प्राइस देने को भी तैयार होंगे, और तब वो जो होर्डर्स हैं, वो थोड़ा करके मार्केट में गुड्स को रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, और ऐसे में प्राइसेस बढ़ने शुरू होंगे। और साथ ही ये स्पेकुलेशन का या एक्सपेक्टेशंस का खेल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अनियंस का प्राइस बहुत बार ऐसा हुआ है कि 100 रुपए से ज़्यादा हो गया है। 98 में भी आई रिमेंबर कि 100 रुपए से ज़्यादा प्राइस हो गया था अनियंस का पर केजी। उसमें एक नया टर्म आया था, प्याज पॉलिटिक्स। 4 स्टेट्स में रूलिंग गवर्नमेंट हारी थी। तो उसमें ये है कि मान लीजिए कुछ लोगों को ये एक अफवाह फैल गई कि प्याज की कीमतें बढ़ने वाली है, 200 रुपए केजी होगी अगले हफ्ते। तो कुछ लोगों ने उसको मान लिया और स्टोर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो कोरी अफवाह है, और एक्चुअली हकीकत भी यही है कि मार्केट में कोई ऐसी शॉर्टेज वाली बात है नहीं, और बहुत है प्याज वगैरह सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक किसी कारण से एक अफवाह फैल गई। तो आधे लोगों ने कहा कि ये अफवाह ही है, लेकिन आधे लोगों ने मान लिया और प्याज को स्टोर करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा प्याज की जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो कम होनी शुरू होगी, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। और जब सभी ने देखा कि प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो जो लोग इसको अफवाह मान रहे थे वो भी फिर उसको स्टोर करना शुरू करते हैं, और जो सिर्फ एक जस्ट एक एक्सपेक्टेशन या र्यूमर थी, वो एक रियलिटी बन जाती है। तो वो स्पेकुलेशन के कारण भी कई बार प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट हो जाती है। फिर है डिफेक्टिव सप्लाई चेन। तो डिफेक्टिव सप्लाई चेन का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे देश में शॉर्टेज में है, उसको अगर हम एक्सपोर्ट कर दें, तो शॉर्टेज जो है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ेंगे। या फिर जो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमारे देश में उसका प्रोडक्शन कम है, वी नीड टू इम्पोर्ट। तो उसका इंपोर्ट का जो टाइमिंग है, अगर वो टाइमिंग डिफेक्टिव हो, तो भी कई बार प्राइस बढ़ जाते हैं। कहीं एक रमेश का एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यही था कि जब मौसम खराब होता है या बारिश, ग्लोबली कंडीशंस इस तरह की है कि हमें पता है कि अभी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल गुड्स के, तो अगर हम टाइमली ऑर्डर कर देंगे उन चीज़ों के इंपोर्ट के लिए, तो हमें सही रेट पे इंपोर्ट्स मिलेंगे, सही प्राइस पे इंपोर्ट मिलेंगे। लेकिन अगर हमने उसको टाइमली इंपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं दिए, तो हमें महंगी कीमतों पे इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे, और हमारे देश में भी कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा, डिफेक्टिव सप्लाई चेन में एक चीज़ और हम मेंशन कर सकते हैं कि देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडियरीज समटाइम्स। और अगर लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडियरीज होगी और हर स्टेज पर कुछ कुछ मार्कअप होता जाएगा, कुछ कुछ प्रॉफिट बुक होता जाएगा, तो अल्टीमेटली जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे 10 रुपए की शुरू हुई थी, वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 80-90 रुपए की हो जाती है। ये हम अक्सर बात करते देखते हैं कि जो टमाटर मार्केट में 80 रुपए बिक रहा है, वो किसान को कितना रुपए मिल रहा है। या फार्मा में देखते हैं कि जो दवाई का पत्ता हमें 200 रुपए का मिल रहा है, वो फैक्ट्री से जब चला था तो 20 रुपए का भी नहीं था। तो वो जो 20 रुपए का पत्ता कंज्यूमर को 200 रुपए में पड़ रहा है, या 10 रुपए का टमाटर कंज्यूमर को 80 रुपए का पड़ रहा है, उसका कारण यही है कि देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडियरीज, और हर स्टेज पे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। फिर है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बढ़िया एग्जांपल मुझे जो लग रहा है वो है पेट्रोलियम का। बहुत बार ऐसी बात हो रही है कि पेट्रोलियम जो एक्चुअल उसका प्राइस होना चाहिए, अगर टैक्सेस हटा दिए जाएं, तो 30-35 रुपए पर लीटर पेट्रोल बिकेगा, लेकिन बिक रहा है वो 90 रुपए। तो 90 रुपीज इसलिए है क्योंकि उस पर एक्साइज ड्यूटी फिर वैट लग रहा है। तो जितने ज्यादा टैक्सेस लगते जाएंगे, कंज्यूमर की जेब पर पड़ने वाला बर्डन उतना ही ज्यादा होता जाएगा। यहाँ पे फिलिप्स का भी हम कर सकते थे एक्सप्लेन, लेकिन वो फिर टाइम मैं शूट कर जाऊँ, उसको लिमिट को क्रॉस कर दूंगा, इसलिए उसको छोड़ दिया फिलिप्स को। वेज प्राइस स्पाइरल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पिछले 4 साल से लगातार 10% प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको पता है कि अगले साल भी प्राइसेस बढ़ेंगे, उनकी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस है। तो जब वो वेजेस के लिए नेगोशिएट करेंगे अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो पहले ही उस एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रख के वो ज़्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे। और अगर एम्प्लॉयर मान लेता है उनकी डिमांड को कि 10% वेजेस उनको ज़्यादा देनी है, तो उसको वो प्राइस में फैक्टर इन करना पड़ेगा, उसको प्राइस उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। और इसका मतलब ये होगा क्योंकि वेजेस, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हुए हैं इसलिए वेजेस बढ़ रही हैं, लेकिन वेजेस बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला स्पाइरल बन जाता है कि
ये लगातार ऐसे होता जाएगा कि वेज पहले अंडा फिर मुर्गी वाली बात हो जाएगी। उसके बाद हमने करना है एक और, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो जो चेन ऑफ प्रोडक्शन है या चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी आप उसको कहें, तो चीज़ें पहले प्रोड्यूसर के लेवल पे प्रोड्यूस होती है, फिर वो होलसेलर के पास जाती है, फिर रिटेलर के पास जाती है, और फिर कंज्यूमर के पास। तो इन सभी स्टेजेस पर वी मेजर इन्फ्लेशन यूजुअली। जो प्रोड्यूसर के टाइम इन्फ्लेशन मेजर होता है उसको हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। होलसेलर से जब रिटेलर के पास जाता है तो इसको हम WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और जब रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाती है चीजें तो हम उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी हैव 3 कैटेगरीज: प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमारे देश में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं मापा जाता, हालांकि अभिजीत सेन कमेटी और सौमित्र चौधरी कमेटी, ये 2 कमेटीज ने रिकमेंड किया था कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। उसका एक कारण ये भी है कि जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा काफी समय तक, जो होलसेल प्राइस हम इंडेक्स करते हैं, सॉरी, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हम मेजर करते हैं, उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड ना करें तो PPI में और WPI में कोई ज्यादा फर्क रह नहीं जाता है, तो इट इज वेरी क्लोज टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब अगर WPI की आप बात करें तो 2009 तक, शुरू से लेके 2009 तक हम वीकली WPI का एस्टिमेट करते थे। हमें याद है कि जब हम पढ़ते थे तो हर मंडे को अखबार में आता था कि WPI रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना हो गया है, और लेकिन दिस वाज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। और दूसरी बात यह है कि हर हफ्ते अगर इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है तो सरकार उसके कारण अपनी पॉलिसीज को एज ए रिस्पॉन्स हर हफ्ते चेंज नहीं कर सकती है, तो वो कोई खास उसका फायदा भी नहीं था कि हर हफ्ते हम इन्फ्लेशन को मेजर करें। इसलिए 2009 से हमने इसको मंथली मेजर करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो मेरे को पहले भी आपको बतानी चाहिए थी जब हम इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे, कि जो भी हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं वो विद रेफरेंस टू सम ईयर करते हैं कि उस साल की तुलना में प्राइसेस कितने बढ़े। तो जिस साल की तुलना में हम प्राइसेस देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं बेस ईयर। और यहाँ पे मैं उस गलती को सुधारते बता दूं आपको कि बेस ईयर जो हम जिस साल की तुलना में हम चीजें देख रहे हैं, दैट हैज टू बी ए नॉर्मल ईयर। अगर हम कोविड का साल बेस ईयर बना दें तो ये एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इट वाज नॉट ए नॉर्मल ईयर, इट शुड नॉट बी ए वॉर ईयर, इट शुड नॉट बी ए ड्राउट ईयर, एक्सेट्रा। और बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत पुराना बेस ईयर लेंगे, हम 1975 का बेस ईयर ले लें, तो बहुत सारी चीज़ें आज के ज़माने की ऐसी हैं जो तब प्रोड्यूस नहीं, मोबाइल फ़ोन है जैसे, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, तो उसका फिर इंक्लूजन नहीं हो पाएगा। तो बेस ईयर नया होना चाहिए, और इसीलिए जो भी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं जिनमें बेस ईयर की जरूरत पड़ती है, तो वो बेस ईयर रेगुलरली चेंज होता रहता है। जैसे कि WPI के कैलकुलेशन के लिए जो हमारा बेस ईयर था वो 2004-05 का था, जो कि अब चेंज हो गए 2004-05 की बजाय 11-12 हो गया है। तो 2017 के बाद से हम जो भी WPI इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं उसमें बेस ईयर को हम 2011-12 लेते हैं, न्यू सीरीज इसको बोलते हैं। और एक्चुअली इट हैज बीन अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि यही एक मेन जिसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन यूज्ड टू बी WPI। जो हम बोलते थे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट इतना है, तो इन्फ्लेशन का रेट इतने का मतलब ये होता था कि हम WPI की बात कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली बात तो ये थी कि WPI में सर्विसेज शामिल नहीं थी। अब इकोनॉमी का 60% GDP सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है, लेकिन हम उस 60% GDP वाले सेक्टर को पूरी तरह से नकार रहे हैं, पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि WPI इतना है, तो उस इन्फ्लेशन की कवरेज काफी कम होगी। एक बड़ा सेक्टर उसकी कवरेज से छूट रहा है, तो इसलिए इसका रेलेवेंस थोड़ा सा कम हो गया। दूसरी बात ये थी कि जो कंज्यूमर को इफेक्ट करता है वो होलसेल लेवल का प्राइस में क्या चेंज आ रहा है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है जितना कि रिटेल प्राइस इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अब RBI ने भी 2014 के बाद CPI को हेडलाइन इन्फ्लेशन के तौर पे अडॉप्ट कर लिया है। तो पॉलिसी मेजर्स के लिए हम अब CPI का यूज करते हैं, ना कि WPI का।
और एक चीज और यहाँ पे इंसिडेंट है कि अभी 2017 से हमने WPI फूड इंडेक्स निकालना भी शुरू किया है। फिर आते हैं CPI पे। जो CPI के ट्रेडिशनल मेजर्स थे वो 4 थे: CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर और CPI फॉर UNME। यूएनएमई मतलब अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। तो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए तो अब CPI निकालते ही नहीं है, उसकी जगह आप आ गया CPI फॉर अर्बन एरियाज, फॉर रूरल एरियाज एंड फॉर कंबाइंड, CPI कंबाइंड। तो ये अब मेजर्स 2012 से आने शुरू हुए हैं। बेस ईयर इसके लिए 2012 है। WPI को कैलकुलेट करते थे इकोनॉमिक एडवाइजर इन द ऑफिस ऑफ इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और CPI, IWAL और रूरल लेबर को कैलकुलेट किया जाता है, लेबर ब्यूरो करती है इसको इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो URC है, अर्बन रूरल एंड कंबाइंड, इसका कैलकुलेशन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और RBI पॉलिसी डिसीजंस के लिए, जैसा कि मैंने बताया, हम अब CPI को यूज करते हैं। और जैसे कि WPI का था कि WPI फूड इंडेक्स एक अलग मेजर शुरू किया गया, इसी तरह से हमने अब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को भी शुरू किया है, ताकि पता चले कि फूड काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो फूड्स के प्राइसेस में क्या चेंज आ रही है। अब एक जल्दी से हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को भी देख लेते हैं। हेडलाइन का मतलब कि ये मेन इन्फ्लेशन है जिसपे हम अपने पॉलिसी डिसीजंस को लागू करेंगे। ये हमारा मंथली बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं CPI के जरिए। अब पहले WPI हेडलाइन इन्फ्लेशन हुआ करता था, अब CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन है, और ये रिफ्लेक्ट करता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स ऑफ प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। एक फिर टर्म है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो बहुत ही वॉलेटाइल फैक्टर्स हैं उसको अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से निकाल दें तो जो बचेगा दैट विल बी कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन में यूजुअली हम जो वॉलेटाइल आइटम्स हैं उनको निकाल देते हैं, और हमारे देश में ये फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस की बात करते हैं कि अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल के प्राइसेस को निकाल दें तो जो बचेगा दैट विल बी कोर इन्फ्लेशन, एंड दिस विल रिफ्लेक्ट लॉन्ग रन ट्रेंड्स ऑफ द प्राइस राइज इन इकोनॉमी। फिर डिफ्लेशन की हम बात पहले भी कर चुके हैं। डिफ्लेशन का मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बारे में पूरा डिस्कस हो चुका है तो अब इसको छोड़ते हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि डिफ्लेशन अलग चीज है, डिफ्लेशन का मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन, और डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन है तो पॉजिटिव लेकिन धीरे धीरे जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है। रिफ्लेशन का मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी अभी मंदी में है और सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि जिससे हम इन्फ्लेशन की तरफ जाएं, तो इकोनॉमी में रिफ्लेशन होता है। जब रिसेशन से हम माइल्ड इन्फ्लेशन में आते हैं और वो एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी के अंदर हम आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। यूजुअली ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ हैंड इन हैंड मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं, दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन 70s के डेकेड में हमने देखा कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और दूसरी तरफ ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। तो वो क्या था, तो उसमें ये देखा गया कि स्टैग्नेशन के साथ भी इन्फ्लेशन हो सकता है, कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है और फिर भी प्राइस राइज हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली एक काफी खतरनाक चीज है स्टैगफ्लेशन। फिर ये एक बेसिक सी चीज है कि अगर बहुत ही लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन, थोड़ा सा बढ़ गया तो वॉकिंग, और बढ़ गया तो गैलपिंग, और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में रिसेंटली जिम्बाब्वे में देखा गया। इसके बहुत सारी स्टोरीज भी हैं, उसको आप नेट पे देख सकते हैं कि जो सुबह चीज 4 रुपए की थी शाम को वो 40 रुपए की होगी। और जब हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो आपको सामान लिफाफों में मिलेगा लेकिन नोट आपको बोरियों में भर के लेके जाने पड़ेंगे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर सरकार हास्यास्पद करेंसी चला देती है कि 1 लाख रुपए का नोट, 10 लाख रुपए का नोट, इस तरीके से। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब कि इन्फ्लेशनरी फोर्सेस तो है इकोनॉमी में लेकिन सरकार ने आर्टिफिशियल मेजर्स लेकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो मेजर्स को हटाया जाएगा इन्फ्लेशन एकदम से
उबाल आके निकलेगा। और ओपन इन्फ्लेशन का मतलब जो भी इन्फ्लेशन हमें दिख रहा है, सरकार ने कोई उसको आर्टिफिशियल मेजर्स के जरिए रोका हुआ नहीं है। सेक्टोरल का मतलब कि इकोनॉमी के कुछ हिस्सों में अभी इन्फ्लेशन है, कुछ ही हिस्सों में। कई बार ऐसा देखते हैं हम कि इन्फ्लेशन रेट कम हो गया है और फिर उसमें लिखा होता है कि वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस कम हो गए इसलिए इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस बढ़ा था वो वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस के कारण था। तो ये थोड़े से ही सेक्टर्स में इन्फ्लेशन हो तो वो सेक्टोरल इन्फ्लेशन है। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है लेकिन एग्रीकल्चर अच्छा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कम होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो सेक्टोरल इन्फ्लेशन होगा। लेकिन सपोज कि अभी पेट्रोलियम और डीजल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर चीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल हो रही है, तो वो उसके कारण सभी चीजों के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। तो दैट spreads throughout all the sectors of the economy, और वो that will be called general inflation. General inflation मतलब इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स में प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब what to do to solve this problem of inflation? जो इसके मेजर्स हैं उसको हम तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स ऑब्वियसली शक्तिकांता दास लागू करेंगे। यहाँ पे फोटो है शक्तिकांता दास का, नहीं रहा है शायद, तो रघुराम राजन, जो भी आरबीआई के गवर्नर्स हैं, वो आरबीआई का काम है कि मॉनेटरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना। एक है फिस्कल मेजर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लागू करती है, और तीसरा है सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स जो कि यूजुअली सरकार का काम है इन जनरल। तो मॉनेटरी मेजर्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। इनको हम बहुत ही ब्रीफली करेंगे। सरकार का काम ये है कि जब अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो मनी की जो अवेलेबिलिटी है या लिक्विडिटी है मार्केट में, उसको कम करना है। वो कम करने के लिए सरकार कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए कर सकती है। जब लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, कम करना है, तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये सीआरआर और एसएलआर है क्या कि ये रिजर्व रेशियोज, इनको ब्रीफली कहा जाता है कंबाइन करके रिजर्व रेशियोज हैं। सरकार ये बैंक्स ये मानते हैं कि सभी लोग जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा निकाल लें, एक साथ तो आएंगे नहीं। अगर एक साथ आएंगे तो फिर, या जो भी लोग जमा करने पैसे आ रहे हैं, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए बैंक में आ गया, जमा हो गया, वो 100 करोड़ का 100 करोड़ बैंक लैंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने लैंड आउट कर दिया और फिर डिपॉजिटर पैसा निकालने आ गए तो वो दे नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा पैसा उस 100 करोड़ में से उनको रखना है अपने पास, ताकि अगर डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ करने आए तो उनको दिया जा सके। तो वो जो पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा, दैट इज रिजर्व रेशियो, सीआरआर और एसएलआर। आपको पता ही होगा कि इस समय जो हमारी सीआरआर है वो 3% है और एसएलआर 18% है। अब सीआरआर को भी रखना है और एसएलआर को भी रखना है, तो फिर क्या है ये? तो सीआरआर का मतलब क्या है कि आप, भाई आप अगर 100 रुपए जमा हुए हैं तो 3 रुपए आपको रखने पड़ेंगे झक मार के, उसको आप यूज नहीं कर सकते, वो आपका इनएक्टिव एसेट बन गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो एसएलआर के फॉर्म में आपने 18% पैसा रखा है, 100 रुपए में से 18 रुपए, उसको आप प्रोडक्टिव पर्पसेज में भी लगा सकते हैं। उस 18 रुपए से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, या आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को भी खरीद सकते हो। तो इससे थोड़ी सी आपको आमदनी हो सकती है एसएलआर से, और सीआरआर से आपको आमदनी होती नहीं है। पहले एसएलआर काफी ज्यादा हुआ करती थी, अभी 18% पे आ गई है। हालांकि मार्केट में लिक्विडिटी इतनी है कि लोन से एडवांस कर नहीं पा रहे बैंक्स, तो 18% से काफी ज्यादा बड़ी रेशो में एक्चुअली बैंक्स ने पैसा पार्क किया हुआ है। और क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब है कि आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं, या जिन सेक्टर्स में आपने कम पैसा देना है उनको रेशन करना शुरू कर देते हैं वगैरह। इसको देख लेना आप। फिस्कल मेजर्स, ये अगर आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पे निर्मला सीतारमन की फोटो है, ये पता नहीं। तो टैक्सेस बढ़ा दो, ये सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। टैक्सेस घटाने पड़ेंगे अगर हमें इन्फ्लेशन कम करना है, तो इट शुड बी डिक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन टैक्सेस एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स
एक्सपोर्ट्स को डिक्रीज करने के लिए हमें जो टैरिफ रेट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट ड्यूटी को थोड़ा घटाना पड़ेगा ताकि इंपोर्ट्स आ सके और उनके जो प्राइसेस हैं वो इफेक्टिवली कम पड़े। और अगर टैक्सेस को हम करेंगे, इसमें दो चीजें एक्चुअली कि अगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वी हैव टू स्पेसिफाई कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हमें कम करना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। तो ये बात जो हो रही है टैक्सेस की, वो डायरेक्ट टैक्सेस की नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की हो रही है। अगर हम एक्साइज ड्यूटी को, वैट को और सेल्स इस तरह जीएसटी को कम कर देंगे तो जो कंज्यूमर के लिए प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो दैट विल लीड टू कंट्रोल ऑन द प्राइसेस। अब सारा कुछ आरबीआई को ही करना है या निर्मला सीतारमन को ही करना है ऐसा नहीं है। सप्लाई साइड मेजर्स में गवर्नमेंट भी कुछ और मेजर्स ले सकती है, जैसे कि इंपोर्ट्स को बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स को कम करना। होर्डिंग हमने बात की थी, होर्डिंग को कम करके भी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। सामान की जो बिक्री है वो फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए कर सकते हो। पेट्रोल का प्रोडक्शन, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ गए हैं तो पेट्रोल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ओएनजीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली इसलिए की गई थी जब पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े थे और मेरे ख्याल में एक डेकेड में 6 गुना प्राइसेस हो गए थे। तो उस समय फिर ओएनजीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया गया ताकि पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन ज़्यादा किया जाए। तो जिन जिन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उन चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ाने पे फोकस किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उन चीज़ों के और विकल्प ढूंढे जाएं, तो उसके जरिए भी प्राइसेस को कंट्रोल में किया जा सकता है। फाइनली आई कम टू इन्फ्लेशन इन इंडिया। ये हम बात कर चुके हैं कि अब जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है डब्ल्यूपीआई की बजाय सीपीआई है। हमारे देश में जो इन्फ्लेशन के हाईएस्ट और लोएस्ट इन्फ्लेशन के एपिसोड्स हुए वो बहुत पास इन्फ्लेशन -11%, ए केस ऑफ डिफ्लेशन ये था। तो एक्चुअली 70s का जो डेकेड है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड डेकेड था इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दिस वाज द टाइम 74 से 76 के बीच में वो टाइम था जब इमरजेंसी लगाई गई जून 75 में। यही वो टाइम था जब प्रोडक्शन जो जीडीपी था वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। ओवरऑल अगर हम 5 साल का या डेकेड का जीडीपी देखें उससे हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम हर साल का जीडीपी देखें तो आपको बहुत बार जीडीपी कम होता हुआ और कई बार बढ़ता हुआ और कई बार बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये था वो टाइम जब हमने 35% इन्फ्लेशन भी एक्सपीरियंस किया है और डिफ्लेशन भी एक्सपीरियंस किया है। और 2016 से आरबीआई ने एक फिट फ्रेमवर्क, आपको पता है कि आजकल जो आरबीआई की पॉलिसीज हैं वो सिर्फ गवर्नर साहब नहीं निर्धारित करते हैं या डिप्टी गवर्नर्स भी के निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी बनाई गई है जो 2016 से 21 तक देख रही थी, अब नई एमपीसी देखेगी। तो उन्होंने एक फिट फ्रेमवर्क बनाया था जिसका मतलब था फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। तो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जो हमारा एक होता है इन्फ्लेशन टारगेट। तो पहले ये 5% हुआ करता था कि हमें 5% से ज्यादा शूट नहीं होने देना इन्फ्लेशन, लेकिन फिट फ्रेमवर्क में हमने कहा कि 4% ±2%। इसका मतलब ये है कि आरबीआई का एंडीवर, आरबीआई का एफर्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन को हम 2% से 6% के बीच में रखें। 4% से 2% कम या 2% ज्यादा तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में हमने रखना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। ये पॉलिसी काफी कारगर होती दिखती है क्योंकि अगर हम अक्टूबर 2016 और मार्च 2020 के बीच का टाइम देखें तो जो एवरेज इन्फ्लेशन है इन 4 सालों का वो 3.9% रहा है, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर टारगेट 4%। 2% का प्लस माइनस भी नहीं करना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट डॉट, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं एस, तो बिल्कुल टारगेट पे है ये 3.9% 4 साल का पिछले। मार्च 2020 के बाद तो चीजें इतनी डिस्टर्ब रही कि उसको क्या ही देखना है। और अगर आप 2016 से पीछे के 4 साल का देखें तो उसमें 4 साल का जो एवरेज इन्फ्लेशन था दैट वाज 7.3%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिट फ्रेमवर्क की पॉलिसी है ये काफी ज्यादा कारगर साबित हुई है।
So with this, I will end my lecture. Thank you very much. Thank you very much, sir. Prashant, sir, if your students are having any questions, they can ask. Please ask your students if they have any questions. Sir, you are not audible. Prashant, sir. Sir, your voice is not coming. Prashant, sir. Okay. If there are no questions, we can proceed. So actually, प्रीवियसली जो अभी तक हम लोगों ने ये लेक्चर सीरीज चलाई है उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को भी जूम लिंक प्रोवाइड कर रहे थे बट देयर वर सर्टेन डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग द लास्ट सेशन जिसकी वजह से इस बार हम लोगों ने थोड़ी लिमिटेड एक्सेस रखी है दैट्स व्हाई ओनली द स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में अपने मल्टीमीडिया रूम्स को यूज कर रहे हैं दे आर हैविंग द एक्सेस बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा का यूट्यूब चैनल है उसमें ये लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा एंड देन इट विल बी मेड अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स बट इट वाज अ वंडरफुल लेक्चर एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और सही मानों में बहुत क्राइसिस के समय पे आपका टाइम हम लोगों को मिला है बिकॉज ड्यूरिंग द प्रीवियस सेशन वी वर हाईली डिसहार्टेंड बाय सम ऑफ द मिस हैपनिंग मगर बहुत अच्छा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने डिटेल्ड explanation दिया है in fact it is very good for the students those who are ये examination time हम लोगों का है and especially the second year students and the MA final year student will be highly benefited. Thank you very much sir for your presence. Thank you. So now we are proceeding towards our second resource person and the second resource person that is available with us is she is Dr. Veena Upadhyay and she is working as an assistant professor in SV College Aligarh. She has a teaching experience of taking UG and PC classes since 11 years. She has a research experience of 20 years and she has attended about 40 national and international seminars in which she has presented papers. She has 15 papers published in peer-reviewed journal at national and international level and UGC listed journal. So we are very thankful to you, ma'am, for accepting our invitation. Now it's time that we are blessed with your session. Over to you, ma'am. Ma'am, your voice is not coming.
सर मेरी आवाज आ रही है आपका? जी मैम, अब आ रही है। Okay, sir. Thank you, sir. I'm thankful to organizing committee who believe in me and give me a chance to present myself in front of you. आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन टाइप्स, its causes and its effect. मैं भी बाईलिंगुअल यूज करूंगी सर, क्योंकि हमारी आगरा यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, तो दैट्स व्हाई mostly I deliver my lecture in Hindi. So before starting my lecture, first I explain the meaning of the inflation. जो जनरल भाषा में हम महंगाई जिसे कहते हैं, वही एक स्फीति है। इकोनॉमिक लैंग्वेज में हम उसे स्फीति कहते हैं। कुछ डेफिनेशन रीड आउट करूंगी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जैसे क्राउथर ने कहा है, स्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती हैं। There is an inverse relationship between the price of the money and the price of commodity. तो स्फीति की दशा जो है वो वह दिशा है जिसमें कि जो हमारी मुद्रा का मूल्य है वो गिरता है और वस्तुओं का मूल्य जो है वो बढ़ता है। लेकिन जनरली ये वाली कंडीशंस नहीं पाई जाती है, इसलिए इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया और कहा कि खाली मुद्रा के मूल्य गिरने में और वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से ही स्फीति नहीं होती है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है वो प्रोफेसर पीगू की है। स्फीति की दशा तब होती है जब मौद्रिक आय की वृद्धि तथा वृद्धि उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ जाए। ये जो है ये राइट कॉज है कि हमारा जो मौद्रिक आय है जो कि परचेजिंग पावर से रिलेटेड है, तो वो जब बढ़ जाती है लेकिन उसके कंपैरिजन में उत्पादन उस रेशियो में नहीं बढ़ता है, तो स्फीतिक दशाएं जो है वो उत्पन्न होती है। स्फीतिक दशाएं उत्पन्न होने से क्या है, परचेजिंग पावर बढ़ती है तो सडनली मांग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कीमत में उछाल आता है, और कीमत में उछाल आता है तो वो जो दशाएं हैं वो स्फीति कहलाती हैं। इन नटशेल में कहूँ तो स्फीति वो कंडीशन है जब सडनली अर्थव्यवस्था में जो है वो मुद्रा की जो सप्लाई है, जो पूर्ति है वो अचानक बढ़ जाती है, और पूर्ति बढ़ने से जो उत्पादन है वो उस रेशियो में नहीं बढ़ता है। तो जब उत्पादन जो मांग और पूर्ति है वस्तुओं की उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण जो है उसको बैलेंस करने के लिए कीमतें में उछाल आता है। Now I come on the point of the types of the स्फीति। तो जो उसकी गति के आधार पे यदि हम कहें तो there are 4 type of the inflation। जो फर्स्ट है that is known as the creeping inflation, जिसे हम रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। इस दशा में जो है, जो स्फीतिक दशा है, जो कीमत में उछाल आता है वो 1 डिजिट में आता है। 1 और 2%, 2 to 3% जो है वार्षिक वृद्धि होती है मूल्य में, और ऐसी यदि वृद्धि होती है तो उसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। ऐसी स्फीति जो है वो अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में सहायक ही होती है, बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होती। इससे जब रेट हाई होता है तो उससे हम चलती हुई स्थिति कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें जो रेट ऑफ इंक्रीजमेंट है वो एनुअल रेट ऑफ इंक्रीजमेंट वो 3 to 10% हो जाता है। मतलब जो प्राइस लेवल है वो 10% के करीब बढ़ जाता है। जैसे 100 रुपए की चीज है तो वो 110 रुपए के करीब हो जाती है। ये एक अलार्मिंग स्टेज है। इसको इस स्टेज पे यदि हमारी स्थिति कंडीशन पहुंच जाती है तो हमें इसके बारे में, इसके मेजर्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट जो स्थिति है वो दौड़ती हुई स्थिति है। दौड़ती हुई स्थिति में जो रेट है वो डबल डिजिट में हो जाता है, 10 to 20, 30 और अप टू 90% मतलब वार्षिक हो जाता है। तो ये वाली जो है, इस स्टेज पे यदि हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया है तो देश
जो है वो घातक स्थिति में आ जाता है और देश में बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो सर्पिट दौड़ती स्फीति, जिसको गैलपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये जो रेट है, यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट ऑफ इन प्राइस होता है वो वार्षिक ना होकर, एनुअल ना होकर मंथली होता है और कभी कभी वीकली भी होता है। और जो इन्फ्लेशन रेट है, जो प्राइस लेवल में इंक्रीजमेंट होता है, वो मोर देन डबल डिजिट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा समय के आधार पर भी हम जो इन्फ्लेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और नेक्स्ट चिरकालीन। तो जो दीर्घकालीन है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको कंट्रोल करना जो है शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारे एग्जिस्टेंस में रहती है। अल्पकालीन जो स्थिति है वो एक ऐसी स्थिति कंडीशन है जिसमें हम उत्पादन अपनी इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस पे उत्पादन उतने रेशियो में नहीं बढ़ता जिस रेशियो में मौद्रिक आय बढ़ती है। तो जैसे जैसे उत्पादन अपना जेस्टेशन पीरियड आता है, उसमें जब उत्पादन होता है तो जो स्थिति है वो खत्म हो जाती है। चिरकालीन मतलब कोई हमारी आ, जो है हमारे पास कोई प्लान भी नहीं होता है जो जिसका एक प्रोसेस रहता है कि वो परमानेंटली काफी लंबे समय तक रहेगी। प्रोफेसर कीन्स ने इस स्थिति को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति और पूर्ण रोजगार के बाद की स्थिति। तो जो पूर्ण रोजगार से पहले की जो इन्फ्लेशन होती है उसको उन्होंने अर्धस्फीति के नाम दिया है। अर्धस्फीति मतलब कि जैसे जैसे रोजगार में वृद्धि होगी तो हमारी जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी जो स्थिति कंडीशंस है या स्थितिक दशाएं हैं अर्थव्यवस्था में वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। लेकिन यदि स्थितिक दशाएं पूर्ण रोजगार के बाद भी रहती हैं तो जो है उनको कंट्रोल करने में सरकार को और इंडिविजुअल को दोनों को मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो स्थिति कंट्रोल नहीं होगी, और उस स्थिति को उन्होंने पूर्ण स्थिति का नाम दिया है। जैसे भरत सर ने जो कॉजेज एक्सप्लेन किए वो किए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। जैसे बताया कि इन्फ्लेशन जो है एग्जिस्ट होता है जब हमारी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस में थोड़ी सी कमियां या डिसबैलेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर जो कॉजेस एक्सप्लेन करूंगी वो करूंगी कि जो मांग में वृद्धि होती है वो मौद्रिक आय में वृद्धि के कारण होती है। और ये मौद्रिक आय में वृद्धि क्यों होती है, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो है मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, और इन्फ्लेशन स्थिति, जो इन्फ्लेशन की समस्या है वो देश में एग्जिस्ट होती है। तो इसका जो फर्स्ट फॉरमोस्ट रीजन है वो एक है सरकार की मुद्रा एवं साख संबंधी नीति। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि जो सरकार की जो मुद्रा है, मुद्रा का जो निर्गमन है वो सरकार के द्वारा होता है, आरबीआई करती है। आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है। तो जो निर्गमन होता है उसके पीछे हम कुछ रिजर्व्स रखते हैं, और उन रिजर्व्स की क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का जो राइट है वो सरकार को होता है। तो जब रेशियो जो वो रिजर्व है, यदि वो रिजर्व की क्वांटिटी कम कर दी जाए तो अचानक मुद्रा की सप्लाई, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है, और जब मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था में अचानक मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है। उसी तरह से साख संबंधी नीति जो है वो रिलेटेड है आरबीआई की पॉलिसीज, जिससे कि जो कि इन पॉलिसीज के अंतर्गत रिजर्व बैंक जो है वो डिसाइड करती है कि कितना रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक रखेंगी और कितना साख का निर्माण करेंगी। यदि इसमें रिलैक्सेशन कर देती हैं, इस रिजर्व रेशियो को घटा देती हैं, तो साख की मात्रा से
जो मुद्रा की पूर्ति है वो अर्थव्यवस्था में अचानक उसमें वृद्धि हो जाती है। जब उसमें वृद्धि हो जाती है तो जो है अचानक जो है वो माँग बढ़ जाती है और लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है और जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। दूसरा है मुद्रा की चलन गति में वृद्धि। जैसे मैंने आपको बताया देयर आर टू टर्म्स, वन इज दैट क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द सेकंड इज रिलेटेड सप्लाई ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी तो जो होती है वो है कि हमारे पास जो करेंसी या सिक्के की मात्रा में जो भी हमारे पास मुद्रा है वो क्वांटिटी ऑफ मनी से रिलेटेड है, जबकि मुद्रा की पूर्ति जो है वो चलन वेग को और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यदि वो सर्कुलेशन उसका मनी का सर्कुलेशन यदि ज्यादा हो जाता है तो हमारी जो चलन वेग की मुद्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है और चलन वेग में वृद्धि होने से जो मुद्रा की पूर्ति है उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है तो उससे उन लोगों के हाथों में भी परचेजिंग पावर आ जाती है जो कि जिनके हाथों में पहले मुद्रा की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण होती है। तो इससे जो उनकी मांग है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है घाटे की वित्तीय व्यवस्था। जनरली जो इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसमें बजट में हमारी जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी आय के जो सोर्सेज हैं वो कम होते हैं। तो आय के सोर्सेज को बैलेंस करने के लिए सरकार जो है वो घाटे की वित्तीय व्यवस्था जो है वो अपनाती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था के बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन जो अल्टीमेट कॉस्ट है वो ये है कि यदि कहीं से भी कोई पैसा अरेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में न्यू करेंसी जो है वो इश्यू होती है और जब नई करेंसी इश्यू होती है तो वो एग्जिस्टेंस में आती है और उससे एकदम जो है मुद्रा की पूर्ति जो है अर्थव्यवस्था में वो बढ़ जाती है और उसके बढ़ने से जो है मांग में भी वृद्धि हो जाती है, जबकि उत्पादन जो है वो हमारा एज इट इज रहता है या बढ़ता है तो उसके रेशियो में बहुत ही कम मात्रा में बढ़ता है। हेलो हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। अरे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अनुत्पादक व्यय में वृद्धि। जैसे कि आजकल जो टाइम जो है वो क्राइसिस का टाइम चल रहा है। सरकार को अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो देश की जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए बहुत सारा व्यय करना पड़ता है। जैसे देश की आउटर साइड की सुरक्षा के लिए उसको बहुत सारे युद्ध के सामान और उनको उनमें व्यय करना पड़ता है अपने को स्ट्रॉन्ग प्रूव कर, जिससे कि कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण न कर सके और हम अपने जो देशवासी हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। उसी तरह से इंटरनल जो सोर्स इंटरनल जो शांति है उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंसेस लॉट ऑफ मनी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशंस पे उनको वो करने के लिए। तो ये जो हमारे जो व्यय हैं ये अनुत्पादक व्यय हैं क्योंकि इनसे हमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं मिलता, जबकि इसमें जो भी लोग लगे हुए हैं या जो भी एसेट्स हमारे लगे हुए हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। तो इनसे सप्लाई ऑफ मनी तो बढ़ जाती है वेयर एज देयर इज नो प्रोडक्शन। तो जो रेशियो है हमारा इन मनी सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी में उसमें वो गड़बड़ा जाता है और उसकी वजह से जो प्राइस हैं वो हाइक हो जाते हैं और ऊंचे हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि बहुत सारे जैसे इंडिया का कल्चर, इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर जॉब कर रहे हैं एंड दे अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर एंड दे स्पेंड दैट मनी टू आवर कंट्री। तो उससे हमारे यहाँ जो विदेशी पूंजी या विदेशी मुद्रा है उसका आगमन हो रहा है, उससे भी हमारी जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो जाती है और उससे जो लोगों की मौद्रिक आय में अचानक जो है वो वृद्धि हो जाती है जिसकी वजह से मांग में वृद्धि होती है। अब मैं आपको कुछ कॉजेस बताऊंगी कि इधर तो ये एक तरफ तो हमारी मांग में वृद्धि हो रही है
क्योंकि मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ हमारा जो उत्पादन है वो एज इट इज है या कम हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे फर्स्ट मोस्ट कॉज है प्राकृतिक कारण। आप देखते हैं कि हर साल कहीं किसी हमारे देश के किसी हिस्से में ड्रॉट आ रहा है, किसी में बाढ़ आ रही है, और कहीं कोई बीमारी फैल रही है। तो उसकी वजह से प्राकृतिक मतलब नेचुरल डिजास्टर डिजास्टर की वजह से जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। जैसे कोविड-19 2020 में स्टार्ट हुआ, तो अ, तो उसकी वजह से जो सारे प्रोडक्शन यूनिट है वो लगभग बहुत सारे टाइम तक बंद रही, तो जिससे कि जो प्रोडक्शन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और उसकी वजह से जो हमारा कुल उत्पादन है उसमें कमी आ गई। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है उत्पत्ति ह्रास नियम में उत्पादन। जैसे अल्टीमेट जो है हमारे जो देश की जनसंख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और अलार्मिंग पॉइंट पर है और बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे देश की। तो जो अ, इतनी बड़ी जनसंख्या है उसके भरण पोषण के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें क्या है कि हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू करना पड़ रहा है, और जब हम एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। और उत्पत्ति ह्रास नियम जब लागू होता है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि होती है तो जो प्रोडक्शन है वो कम मात्रा में होता है और कीमतों में जो है वो वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की कमी। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे कारणों की वजह से हमारे यहाँ जो फिनिश प्रोडक्ट है वो नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, क्योंकि कच्चे माल की शॉर्टेज हो जाती है। हुँ, जैसे एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ मैंने बताया है कि नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उत्पादन में कमी हुई, जिसकी वजह से जो कच्चा माल है वो कम पैदा होता है। दूसरा इम्पोर्ट पॉलिसीज़, इम्पोर्ट कहीं से कर रहे हैं हम, वहाँ उस देश में कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से प्रॉपर इम्पोर्ट नहीं हुआ। तो जब कच्चा माल नहीं है तो हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है या जो अ, प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाती है, और उसमें कमी आने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो नहीं पाता, और उस प्रोडक्शन में कमी के कारण जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो सरकार की कर और व्यापार संबंधी नीति है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन में जो है वो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाती है। तो जो भी पैसा सरकार अलॉट करती है अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए वो कम पड़ जाता है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार के इनकम्प्लीट रहते हैं, और उनको यदि कंप्लीट करने के लिए सरकार फंड अरेंज करती है तो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाती है, और वो एक्स्ट्रा टैक्सेस की वजह से जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं और प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। दूसरा व्यापार संबंधी नीति है। अपने उसको अनुकूल करने के लिए व्यापार संबंधी नीति में कभी-कभी इम्पोर्ट पे हैवी टैक्सेस लगा देती है, जिससे की वजह से रॉ मटेरियल कम हो जाता है। टैक्स एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट पे रिड्यूस कर देती है, जिससे इंटरनल मार्केट में हमारे में वो कमी हो जाती है। तो इन कमियों की वजह से जो हमारा अपना प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और डिमांड एज इट इज रहती है, जिसकी वजह से प्राइस हाइक हो जाती है। नेक्स्ट, जैसे हमारा देश जो है वो विकासशील देश, although we tried our best to modify all the production unit, but still lot of production units are like that, where we use the outdated method, technique and machinery, जो कि जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कम हो जाता है, और आउटडेटेड टेक्निक, पुरानी मशीनों की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो एक तो पुअर क्वालिटी का होता है, और दूसरा उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम ही रह जाता है, और अगेन डिसबैलेंस जो है वो मांग और पूर्ति में हो जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक अशांति। जो रिलेशंस हैं, जैसे-जैसे धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ
जो प्राइवेट सेक्टर है उसका साम्राज्य ज़्यादा होता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर रिड्यूस होता जा रहा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनका मेन मोटिव है टू मैक्सिमाइज़ देयर प्रॉफिट। और वो जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं, जस्ट रिड्यूस द वेजेस ऑफ द लेबर। और लेबर जो है वो जब रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या है कि उन दोनों के जो रिलेशंस हैं, प्रोड्यूसर और लेबर के जो रिलेशंस हैं उनमें अक्सर करके तनाव रहता है, जिसकी वजह से लॉकआउट्स होते हैं, हड़तालें होती हैं और हड़ताल इनकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन जो है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है और इन्फ्लेशन जो है वो एग्जिस्ट हो जाता है। तो ये कुछ कॉजेस थे जो कि मौद्रिक आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी मांग में वृद्धि होती है और उत्पादन में कमी के कारण हमारा जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो अगेन देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड ड्यू टू दैट द प्राइस राइज। अब मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट के ऊपर प्रकाश डालूंगी कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। जो बहुत सारे वर्ग हैं अर्थव्यवस्था के, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन, आई थिंक द सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर नाउ कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले मैं उत्पादक पे कहती हूँ कि उत्पादक पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि उत्पादक जो है वो प्रोड्यूसर होता है और जो उत्पादन होता है वो पहले होता है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसकी सेम सी रहती है। जैसे ही इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन में सडनली जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो वो जो उसका जो जो उसे आफ्टर सेलिंग देयर प्रोडक्ट जो भी प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट उसको रिसीव होता है वो उसके शेयर में चला जाता है। तो उत्पादक जो वर्ग है वो हमेशा ही लाभ में रहता है इन्फ्लेशन की वजह से। नेक्स्ट है निवेशक, investors. There are two type of the investor. One is the safe investor and the second is the risk taking investor. Safe investors में उन जो कि इन्वेस्ट करते हैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट में, इस तरह के पोर्टफोलियो में जिसमें कि उनको रिस्क नहीं बियर करना पड़ता। उनको एक फिक्स परसेंट अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिवार्ड मिलता है और वो जस्ट लाइक ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे सपोज यदि वो डिवेंचर्स में लगाते हैं पैसे, सिक्योरिटी परचेज करने में लगाते हैं, तो उनको एक फिक्स अमाउंट उस इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। तो इससे उनको लाभ नहीं होता क्योंकि जिस टाइम में वो इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो ऊंची होती है, लेकिन जब उनको वो रिटर्न होता है तो उस टाइम में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनको हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्शन में, तो उसमें उस कंडीशन में उनको जो है वो फायदा होता है क्योंकि उस टाइम में वो लोग उनको जो भी लाभ, जो प्राइस राइज होने की वजह से जो प्राप्त होता है वो उनका पूरा का पूरा शेयर उनको उसका मिलता है। इन्वेस्ट वो कम वैल्यू का लगाते हैं जब मनी की वैल्यू जो है वो कम होती है, लेकिन जब उनको रिटर्न होता है तो वो हायर रेट से होता है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट जो वर्ग आता है वो आता है श्रमिक और वेतनभोगी। श्रमिक लेबरर क्लास और वेतनभोगी जिनको मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और दूसरे जो जॉब्स हैं जहाँ पर उनको फिक्स्ड इनकम मिलती है, तो उनकी स्थिति जो है वो दयनीय हो जाती है क्योंकि उनकी इनकम में इन्फ्लेशन के रेशियो में इंक्रीजमेंट नहीं होता है और जो उनकी परचेजिंग पावर है वो पहले की अपेक्षा रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि वो क्राइसिस में आ जाते हैं और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पहले के कंपैरिजन में
कम हो जाता है, या जो भी वो सेविंग करते हैं उस टाइम में, अर्लियर टाइम में, वो सेविंग जो है वो अ, उसकी जो वैल्यू है वो भी घट जाती है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है उन पर जो इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, वो नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता। जो हमारा कंज्यूमर है, वो वो भी जो है वो नुकसान में ही होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन सडनली द प्राइसेस इंक्रीज, और जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उपभोक्ता जो है, जो उसकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, वो कम पड़ जाती है। जो हार्ड अर्निंग, या जो जो भी वो थोड़ा ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है, वो ड्यू टू द हाई राइस एंड ड्यू टू द राइज इन द प्राइस, वो सब उसके अपने डे टू डे के कंजम्पशन में वो खर्च हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता की स्थिति जो है वो बड़ी दयनीय सी हो जाती है, और कभी-कभी वो अपने उसी स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अपनी बचत का भी उसको यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वो है ऋणी और ऋणदाता। ऋणी जो है इस टाइम में फ़ायदे में होता है, और ऋणदाता जो है वो नुकसान में होता है। ऋणी फ़ायदे में इसलिए होता है क्योंकि उसको जो जो वो पैसा जो लौटाता है, वो कम वैल्यू वाला लौटाता है, क्योंकि उस टाइम में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज़ होती है, और जब वो ऋण लेता है, तो वो उस टाइम में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हायर होती है। उस कंडीशन में उस वो जो है वो फ़ायदे में होता है। जो भी पैसा वो रिटर्न करता है अपने उस ऋणदाता को, उसकी जो वैल्यू है उस कंपैरिज़न में जिसमें वो लेता है वो कम होती है, इसलिए वो फ़ायदे में होता है। ऋणदाता जो है वो नुकसान में होता है, क्योंकि जिस टाइम में वो पैसा देता है, उस टाइम में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हायर होती है, और जिस टाइम उसको वो रिटर्न होता है, उस टाइम में वैल्यू ऑफ मनी कम होती है। तो जो रिटर्न अमाउंट होता है विद इंटरेस्ट, कभी-कभी वो अमाउंट जो वो देता है उससे भी कम होता है। उसकी जो रियल आप कह सकते हैं रियल वैल्यू जो होती है उस पैसे की, वो कम होती है, इसलिए वो नुकसान में होता है। इसके अलावा कुछ आर्थिक प्रभाव जो अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं, वो ये हैं कि जो धन का वितरण है, वो असमान हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि उत्पादक वर्ग को लाभ प्राप्त होता है, और जो उपभोक्ता वर्ग है, उसको वो लॉस में होता है, वो उसका जो है वो घाटे में होता है। तो र श्रमिक जो है वो भी घाटे में होता है, तो ये जो गैप होता है अमीर और गरीब का, ये जो है और बढ़ता जाता है। उत्पादक जो है वो और रिच हो जाता है, और जो उपभोक्ता है वो कम, उसकी जो आय है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट जो है, जब वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाती है, तो जो एक बिलीव होता है, जो लोगों को विश्वास होता है मुद्रा में, वो जो है उसका धीरे-धीरे डगमगाने लगता है। क्योंकि जनरली जो लोग कुछ लोग जो सेविंग करते हैं, वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वो पैसा रखते हैं। लेकिन जितना अमाउंट वो बचाते हैं, वो अमाउंट इन्फ्लेशन की वजह से उस भविष्य की अनिश्चितता को कहीं न कहीं डगमगा देता है। तो इससे उन लोगों का जो विश्वास है मुद्रा में, वो धीरे-धीरे सकते में आ जाता है, और वो धीरे-धीरे उसमें घटने लगता है। करों में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सरकार की जो आय है, वो जो है वो कम होती जाती है। सरकार की आय में कम हो जाती है, तो सरकार जो है वो करों का रेट जो है वो बढ़ा देती है। अ, दूसरा जो है, इसके मतलब कर भी जो है सरकार एक लिमिट में जो है वो बढ़ा सकती है। उससे ज़्यादा, क्योंकि उस कंडीशन में अविश्वास आ जाएगा, तो उस कंडीशन में सरकार क्या करती है कि सरकारी ऋणों को प्राथमिकता देती है। और जब सरकारी ऋणों को प्राथमिकता देती है, तो उस ऋणों को वो यूटिलाइज़ करती है अपने प्रोडक्शन के काम में और उसमें। तो उससे जो अगेन जो सप्लाई ऑफ मनी है वो
कम वो जो है बढ़ जाती है। एक तरफ उपभोक्ता की परचेजिंग पावर जो है वो तो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यदि वो उपभोक्ता से लेती है, लेकिन यदि वो बैंकों से वो ऋण लेती है, तो जो सप्लाई ऑफ मनी है उसमें जो वृद्धि है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विदेशी व्यापार में असंतुलन हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जो आयात है वो कंपैरेटिवली सस्ता हो जाता है, और जो हमारा जो निर्यात है वो महँगा हो जाता है। और निर्यात महँगा हो जाने की वजह से जो हमारी जो लेनदारी है वो कम हो जाती है, और आयात सस्ता होने की वजह से हमारी देनदारी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, वो डिसबैलेंस हो जाता है हम पर, और जनरली वो डिसफेवर में हो जाता है, और नेगेटिव हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारी देनदारी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एक जो सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट करता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, कि इन्फ्लेशन की वजह से जो समाज में जो अनैतिकता है वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो कहेंगे कि आप लोगों की जो फिक्स इनकम है, जैसे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, इसमें वृद्धि हो जाती है। जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो नए-नए, क्योंकि everyone attracted towards the modified things available in the market, तो जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो चोरी में, डकैती में, इन सब न्यूसेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो जिससे कि समाज में भी एक अ, अनैतिकता बढ़ जाती है, जो सोशल स्टेटस है वो लोगों का गिर जाता है। जो लास्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है वो राजनीति पर। इन्फ्लेशन की कंडीशंस में जो अ, जैसे कि सब आपको पता है कि प्राइस लेवल हाई हो जाता है, तो जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, और जब वो कंप्लीट नहीं हो पाते, तो लोगों की जो आशाएं होती हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, उनका जो विश्वास है वो डावाडोल हो जाता है, और डावाडोल होने की वजह से जो है अ, वो क्या करते हैं, बार-बार सरकार को चेंज कर देते हैं। जैसे भी जब भी इलेक्शन आते हैं, जहाँ 5 इयर्स हैं, जहाँ 2 इयर्स हैं, जहाँ 3 इयर्स हैं, एंड एवरी टाइम दे चेंज द गवर्नमेंट। और जब नई गवर्नमेंट सेटअप करते हैं, तो आप देखिए कि एक नई पॉलिसीज़ नई गवर्नमेंट बनाती है, और जो पुरानी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो पॉलिसीज़ होती है, उसको उनमें विश्वास नहीं होता, और इन सब में अ लॉट ऑफ वेस्टेज आर गोइंग ऑन, और जबकि देश का जो विकास है, वो एज़ इट इज़ ही रहता है। उसका और बल्कि वो डाउन टू बस चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते, उससे पहले सरकारें बदल जाती हैं, और जब सरकार बदल जाती है, तो सारी पॉलिसीज़, रोज़गार, भविष्य लोगों का जो है, वो अंधकार में हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट्स जो हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने एक्सप्लेन किए। यदि ये अब इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सारे मेजर्स हैं। जो भी कॉजेज़ हैं, उनको यदि हम रिवर्स कर दें कि सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज़ कर लें, और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें एट एनी हाउ, बाय मेकिंग द इंडिविजुअल एफर्ट्स और बाय मेकिंग द गवर्नमेंट एफर्ट्स, तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक लिमिट तक, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि जो रेंगती हुई इन्फ्लेशन है, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, यदि वो एग्जिस्ट करती है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंक्रीज़मेंट तो ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो उतनी इंक्रीज़मेंट तो सही है, उतने पे ही कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन जैसे ही अलार्मिंग स्टेज हो जाए तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए, अदरवाइज़ इट क्रिएट द very dangerous position for the growth of the development. Thank you very much. So now I end my
lecture. Thank you very much. यदि कुछ questions हो बच्चों के, I will try to complete it. Thank you, ma'am. Thank you. शायद यहाँ पर नहीं है, तो उनकी जगह मैं ही इस सेशन के लिए थैंक्स गिविंग करना चाहूँगा। To the respective organizers, on the behalf of the respective organizers, I'm very thankful to my resource persons who have given their precious time to our students. शायद मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है। पहुंच रही है, थैंक यू मैम। All एक्चुअली मुझे लगा शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं नहीं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। एक्चुअली मैम लास्ट टाइम हम लोग जो लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसमें कुछ इश्यूज थे, इसीलिए हमने इस पर थोड़ा सा इसको लिमिटेड किया है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग हमने शुरू किया है यूट्यूब पर जी, और उसका लिंक हम आपको अभी शेयर कर देंगे। और मैं आपको फिर से आभारी हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे बच्चों के लिए एक बेसिक लेक्चर प्रिपेयर किया, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद इन बेसिक चीज़ों को भी नहीं समझ पाते हैं। और भारत सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे My pleasure, sir. इन्फ्लेशन मेजर्स में जो चेंजेस ला रही, खास करके मेजरमेंट में जो उन्होंने चेंजेस लाया है। WPI अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन CPI की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ी है अभी रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि WPI और CPI के बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम इस गैप को फिल नहीं कर पा रहे हैं और अपनी पॉलिसीज WPI के इर्द गिर्द बना रहे हैं कि जो हमें दिखाना होता है कि महंगाई कम बढ़ रही है, हम WPI के आंकड़े शो करना शुरू करते हैं, और जो हमें कंज्यूमर के कुछ कट ऑफ करने होते हैं तब हम CPI की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए गवर्नमेंट का, और एक प्रॉपर इंडेक्स हम लोगों के लिए चाहिए। अब सारी नीड्स बदल चुकी हैं, जो हम लोगों का पुराना WPI स्ट्रक्चर चला आ रहा है, हम उस WPI स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं चेंजेस लाने चाहिए, और तभी शायद हम इन्फ्लेशन को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। मैं SR अग्रवाल सर का भी बहुत आभारी हूँ, जो हमारे इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद हमें कमेंट्स देते हैं। डेफिनेटली SR सर के भी मैं कमेंट्स आपको बहुत अच्छे से आपको आगे भी परस्यू करूंगा, और चाहूंगा कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। एक छोटी सी शुरुआत है, हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, हो रही हूँ इस प्रोसेस में, लेकिन हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू नीरज सर, थैंक यू सर।